Assalamu alaikum. I have come to my Jivana Hotel and Resort, which is in Gizar in Yasin Valley, and this is the second floor I am on. And just see the view. We have view of the Hindu Kush mountains. It's all around the hotel. It is being built here. It is almost going to be completed in about one and a half years time. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر ہوں اس وقت نومبر میں 20-21 تاریخ ہے نومبر کی. and it is absolutely beautiful. It is, we in fact want to encourage in this valley, in our hotel in Jivana Hotel and Resort, we want کہ یہاں پہ ونٹر ٹورزم بھی ہو, بیکاز ونٹر ٹورزم میں ہر طرف سنو ہے اور موسم ٹھیک ہے. شام کے وقت -5 ہو جاتا ہے, -10 ہو جاتا ہے, -15 ہو جاتا ہے, مگر یہاں پہ اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ہوں جہاں پہ گرم پانی بھی ہو اور ہیٹنگ فیسلٹیز ہو, تو یہاں پہ بالکل کسی چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے, بیکاز یو وانٹ ٹو آلسو انجوائے دا ونٹرز. اور people who have not seen the snow, children who have not seen huge mountains with snow, آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہیں. I just want to also tell you کہ آپ یہاں پر سن رائز سن سیٹ ماؤنٹنز میں, دس از another ایک قسم کا میریکل ہے یہ بھی دیکھنا. ابھی ریسنٹلی یہاں پہ سنو لیپرڈز ہیں اس ریجن میں, اور ماخور ہیں بہت سارے. ابھی ریسنٹلی ایک بچہ ملا تھا ان کو, ایک اس کا سنو لیپرڈ کا. تو یہاں پہ اتنے ماؤنٹنز میں اترتے ہیں نیچے, اور ماخور بھی اترتے ہیں, تو یہاں پہ بچوں کے لیے بھی ایک, اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی اٹریکشن ہے کہ یو کین سی وائلڈ لائف ہیئر, اینڈ دیر از اے ہول ڈپارٹمنٹ آن وائلڈ لائف ہیئر. یہ میں اپنے 3rd فلور سے اب نیچے جا رہی ہوں. یہاں پہ بڑی تیزی سے کنسٹرکشن ہوا ہے, اور میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ اتنی تیزی سے نا یہاں پہ کام ہوا ہے, اور کر رہے ہیں یہ لوگ مزید. یہ لوگ اتنے محنت سے کام کر رہے ہیں, اور آفرین ہے لوگوں پہ کہ اتنا کام اور اتنی جلدی انہوں نے کام کیا, اور اتنا اچھا ستھرا کام کیا ہے, اتنی کلاسی کام کیا ہے. میرے ابھی ریسنٹلی آرکیٹیکٹ صاحب آئے ہوئے تھے کل پرسوں, تو انہوں نے مجھے بولا ہے, کہتے ہیں اتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہے کہ اٹ از این ایگزامپل دیر سیٹنگ, اٹ از سو بیوٹیفل, اور اچھا کام کیا ہے. یہ ہمارے ہوٹل کے باہر بیوٹیفل واک ہے, تو یہ بھی میں آپ کو I want to tell you that this is the area is so beautiful that even walking here, and the best part is there's so much less traffic, you know, especially now it's winters, there's hardly any traffic. You know the river here, the water is absolutely blue. This is so, I would say, extraordinary beautiful. The water is, and there's trout inside. فیاضی, ہماری فیاضی کی منگنی ہو گئی ہے. اچھا ہے نا, تو اس نے صبح فون کیا تھا اپنی محبوبہ کو, تو اس نے بولا خبردار مجھے فون کیا, ڈونٹ ڈسٹرب می. چپ کر کے بیٹھا ہے, کہ سوچ رہا ہے میں کب فون کروں. ہے نا پیازی, کہنا چاہتی ہوں آپ کے ویلاگ میں کہ ہمارے جو ایک بڑے اچھے ٹاپ مینیجر صاحب ہیں, ریاض صاحب, ان کا نام بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ جب آئیں تو پہچان لیں انہیں. ریاض صاحب اس ولیج کی ہیں, جی جی, پورا فیملی اس ولیج میں رہتا ہے, تو انہوں نے کبھی اس طرف رخ نہیں کیا, ہمیشہ اس طرف ہی رخ کیا. یعنی کہ اس نے بیوٹیفل برکت اور یہ سندھی کا ولیج دیکھا ہی نہیں, بس اس طرف ہی انہوں نے رخ کیا. فکر نہ کرے, اب جا کے ان کی میں نے صحیح کلاس لینی ہے. ٹھیک ہے. کہ اس طرف بھی نہیں آئے. یہ بیر دیکھو بھائی, یہ کیا ہے؟ بیر. 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 یہ کھیتوں میں چلنے کا بھی ایک یونیک اسٹائل ہے آنیسٹلی. اس میں بھی ایک انسان کی نا ایک مائنڈ فلنس ایک ہیبٹ بن جاتی ہے, کیونکہ آپ ایک اسٹیپ پہ نا اپنے مائنڈ کو انگیج کر رہے ہیں. تو دس از آلسو
a way of just decluttering your mind, thinking positive, looking into life in a different way. So the beauty of a village life and giving yourself a break is not only uh, having a little holiday, but it's also mentally releases all your stress, or आपका mind more goes into more clarity, mind becomes more mindful, mind becomes more relaxed, and mind becomes more blissful. The thing I want to say is, if you leave everything in God's hands, ये मैंने अपना खुद एक ये तजुर्बा किया है. If you leave everything in God's hand, then eventually you will see God's hand in everything. और आज हमें जो गज़ाला जीज़ी और मिकी ने हमें जो ब्रंच और लंच इकट्ठा कराया, तो उसमें क्या नहीं था मैं आपको बताइए. यॉर्क मीट को उन्होंने स्टेक बनाया हुआ था, उन्होंने रोस्टेड इतने बड़े उनको एयर फ्राइड टोमेटोस और पोटैटोस किए हुए थे, और देन इट वाज अ होल फीस्ट. उसमें इतनी ज़बरदस्त चीज़ें खिलाई उन्होंने हमें, और पराठे भी थे और आलू की भुजिया भी था, एंड शी मेड अ होममेड केक, स्पंज. और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं. आप कहीं भी चले जाएं ना, कहीं भी रुके ना, आपको पकड़ के ले जाएंगे अपने घर. नहीं, हमारे साथ आपने चाय पीनी है, और उनके घर में जो भी छोटी मोटी चीज़ होगी वो सामने ले आएंगे. तो बेशक जितने भी गरीब हैं, मगर उनका दिल राजों से भी बड़ा है. ऑनेस्टली मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे बहुत लोग मेहमान नवाज इतने अच्छे हैं और दिल के इतने अच्छे हैं. और दूसरी बात एक और है, सुखचैन में मैंने जो आपको अपनी एक और दिल की बात बताती हूँ. सुखचैन में मैंने इतने गिलगित बाल्टिस्तान के लोग क्यों रखे हुए हैं. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोगों ने इतने लोग क्यों रखे हुए हैं. मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज दीज पीपल आर फुल ऑफ इंटेग्रिटी, दे आर फुल ऑफ ऑनेस्टी, they are full of self-respect, and they have so much honesty in them. That is why I have kept all these people, and this, by and large, this whole region is full of, these people are full of self-respect. तो ये बहुत बड़ी बात है. यही मैं अपने दूसरे लोगों को जो ना समझ लोग हैं, सॉरी टू से मैं ये बोलना नहीं चाहती हूँ, मगर दूसरे रीजन से हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है सुखचैन में, वो मैंने देखा है कि लोग बहुत छोटा सोचते हैं, छोटे गेन्स के लिए वेट करते हैं. और अगर वो अपने दिल से काम करें और दूसरों के लिए एक्सटेंड करें अपनी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी, तो मैं नहीं करूँगी, कोई नहीं करेगा, मगर खुदा देख रहा है, खुदा उनके लिए बहुत करेगा. तो ये छोटी सोच जो रखते हैं ना, तो ये बेसिकली अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? सर्दी तो नहीं लग रही? अच्छा, जो यहाँ के लोग हैं ना, यासीन के, बेसिकली आप गिलगित में, हुंजा में, दूसरी जगहों पे, नगर में जहाँ पे जाएंगे ना, तो यू विल फाइंड कि बड़े फेयर स्किन के हैं, और बाल भी उनके बड़े फेयर है. मगर एक बात, यासीन जो रीजन है ना, इसमें आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरती नज़र आएगी. बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, औरतें बहुत खूबसूरत हैं इनके. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ के रीजन के हैं ना, ज़्यादातर, हाँ, दे आर मोर सेंट्रल एशियन. सेंट्रल एशियन मीन्स फ्रॉम टर्की, फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, फ्रॉम बॉस्निया, फ्रॉम उज़्बेकिस्तान, एंड इस रीजन से ना, ये बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं. तो आप लोग जब इनके चेहरे और इनके नक्श और इनके ये देखते हैं ना, तो दे आर फ्रॉम दिस रीजन मोर. तो इस रीजन में ये ज़्यादा इस किस्म के लोग हैं. यहाँ छोटी सी एक नदी है जो बहुत खूबसूरत है, छलांग मारनी पड़ती है, मगर बहुत खूबसूरत है. गर्मियों में ये सारा पानी से भरा होता है, तो ये भी यहाँ पे बोटिंग हो सकती है. यहाँ पे अगर यहाँ से आप बोट ये बैठे ना इस एरिया में से, तो आपको सीधा वो ले जाएंगे
पता नहीं कहाँ तक. So यहाँ पे बोटिंग भी बड़ी प्यारी हो सकती है. अरे रिजॉर्ट के जीवाना होटल एंड रिजॉर्ट के बिल्कुल ऊपर एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है और उसकी अजान अभी हो रही है. तो उस मौलवी साहब को मैंने बोला है, मैंने कहा मौलवी साहब आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है और हर तरफ जो पहाड़ियों की साइलेंस के बीच में जो आ जाती है और गूंजती है, तो दिल लगता है कि उसी वक्त खुदा का हाथ ऊपर करें और खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इतनी खूबसूरत लाइफ दी है, ऊपर से इतनी खूबसूरत वादियाँ दी हैं. तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत बहुत something which we have to preserve and which we have to really think that our life is a gift and we have to all look after our life and enjoy this gift God has given us. जब मैं पहले आई थी ना गिलगित बाल्टिस्तान कोई आज से कोई 3-4 साल पहले, तो मुझे याद है कि हम लोग पता नहीं कहीं रुके थे, तो मुझे हमजा में कहीं, तो एक चैनल वाले मेरे पास आए, कहते हैं कि बताइए मैडम आप आई हैं पहली दफ़ा, तो आपको ये कैसा लगा, तो कितना ये कैसा लगा है, कितना खूबसूरत है तो ये हमारा रीजन. तो मैंने उनको ये कह रही थी कि मैं बहुत पूरी दुनिया फिरी हूँ, मैंने बहुत जगहें देखी हैं, कनाडा देख लें, स्विट्ज़रलैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, यूरोप में कितने कंट्रीज़ हैं मैं गई हूँ, तो बहुत जगहें मैंने देखी हैं, अमेरिका देखा है, मगर जितनी खूबसूरती हमारे मुल्क में है मैंने कहीं नहीं देखा. इतने खूबसूरत पहाड़, इतनी खूबसूरत वैलीज़ और ऑल प्रिस्टीन ब्यूटी, अनटच्ड ब्यूटी. सो यहाँ पे रिवर्स ले लें आप, ट्रीज़ ले लें आप, वैलीज़ ले लें आप, माउंटेन्स ले लें, ह्यूज हमंगस माउंटेन्स ले लें. वन ऑफ द 7 टॉप माउंटेन्स इन द वर्ल्ड यहाँ पर हैं हमारे रीजन में. तो हमारे पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है. हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और हमें चाहिए ईच वन, हम लोगों की ये ड्यूटी है कि वी शुड प्रिजर्व आवर कंट्री, वी शुड लुक आफ्टर आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री एंड वी शुड मेक श्योर दैट ईच वन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर ओन कंट्री एंड टू टेक केयर ऑफ आवर कंट्री. वी शुड नॉट लिटर आवर कंट्री, गंद ना करें, गंद को देखें कौन कर रहा है, उनको टोकें, उनको बताएं, उनको अवेयरनेस फैलाएं और अपनी कंट्री का ख्याल रखें. हमारी कंट्री बहुत खूबसूरत है और बहुत हमारे बहुत कुर्बानियों से ये मुल्क हमें मिला है. तो हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ब्यूटीफुल मुल्क को अपने को आबाद रखें, अच्छा रखें, क्लीन रखें, इसकी आबो हवा साफ़ रखें. मैं तो इसलिए तो मैं यहाँ पे इस वक्त आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन लाहौर में इतनी ज़्यादा थी कि मैं सांस नहीं ले सकती थी, तो मैं इधर आ गई. मगर मुझे ये इस बात का अफसोस हुआ है कि हम में से हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे लोगों को, ईच वन ऑफ अस शुड बिकम अवेयर कि अपने आप को प्रिजर्व करें और अपनी कंट्री का ख्याल रखें. इवेंचुअली मैंने छलांग मार ही ली. तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा होगा अगर हम अपनी कंट्री का ख्याल रखें. बस मैं अब ये अपना वीडियो क्रॉस करने लगी हूँ. till further more videos for you all in future. So from now, Khuda Hafiz, take care, look after yourselves, and don't ever forget, you come first and your health comes first.